hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 7 of your class 5 EVs, that is some special celebration. You know, in a whole year we do many celebrations, like there are some special celebrations like Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti. Why we do celebrate these occasions? Because on Republic Day our constitution was launched. On 15th August we got independence, and on 2nd of October it's Gandhiji's birthday. So let's read the chapter. In the calendar, some days are marked as special or memorable days. You know, in our calendar कुछ days mark होते हैं specially कि special days है या ये memorable days है. These days में national और international days, वो these days में भी national days भी हो सकते हैं या फिर international days भी हो सकते हैं. National days are celebrated within our country. National days कहाँ पे celebrate होते हैं? हमारी country के अंदर. Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, Teachers Day and Children's Day are some national days. कौन से हैं? Gandhi Jayanti, Republic Day, Independence Day, Teachers Day, Children's Day and are some national festivals. International days are celebrated throughout the world. International days जो होते हैं पूरे world में celebrate होते हैं. World Environment Day, World Health Day, Earth Day and International Literacy Day are some international days. We shall now discuss these special days and how they are celebrated. अब हम उन days को international days को और national days को कैसे celebrate करते हैं और हम इनके बारे में जानेंगे कि क्यों celebrate किए जाता है. So first of all we will talk about national days. National days क्या होता है? जो हमारे country के अंदर celebrate होता है within a country, within the boundaries of the country. So first is Independence Day. Why we celebrate Independence Day? Okay, because we get independence on 15 August 1947. That's why we celebrate Independence Day on 15 August. Independence Day is celebrated on 15 August every year. हमेशा आप हर साल celebrate करते हो. There is function organized in your schools, in your community. On this day, in 1947, India became free nation. India क्या हो गई थी? Free nation बन गई थी इस दिन. For nearly 200 years, India had been ruled by British. कम से कम 2 साल के लिए इंडिया किसमें रूल कर रही थी? ब्रिटिशर्स के अंडर रूल कर रही थी. Many great freedom fighters lost their lives and struggle for freedom. कितने freedom fighters ने अपनी लाइफ को लॉस कर दिया? किसके लिए? अपने हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए. Finally, in 1947, the British government handed over the reins of power to the people of India. किसने दे दी थी सारी पावर? people of India क्या था? Britishers ने. Pandit Jawaharlal Nehru became our first prime minister. Who became our first prime minister of the independent India? Pandit Jawaharlal Nehru जी बने थे हमारे first prime minister. Every year on 15 August, the Prime Minister unfurls the national flag and embraces the nation from the ramparts of the Red Fort in India. हमेशा 15 अगस्त को कौन who holds the flag on 15 अगस्त? हमेशा कौन करता है? Prime Minister. कहाँ पे? Red Fort in Delhi. The national flag is also unfurled in every school and government institution. हर जगह वहाँ पे लहराया जाता है ना झंडा 15 अगस्त को. The national anthem is sung with great pride. आप national anthem भी गाते हो बहुत ज़्यादा pride के साथ, goosebumps भी आ जाते हैं. Sweets are distributed and kites are flown to celebrate this occasion. Sweets भी distribute होते हैं, kites भी fly होती है इस occasion को celebrate करने के लिए. Every Indian remembers the sacrifices made by the freedom fighters and salute the national flag. हमारे freedom fighters को हम याद करते हैं और salute करते हैं अपने national flag को. Now let's talk about Republic Day. What do you mean by Republic Day? Every year, 26 January is celebrated as Republic Day. कौन सा day celebrate होता है Republic Day की तरह? 26 January. Why? It was on this day, 1950, that India became a republic. India क्या हो गई थी? एक republic बन गई थी. It means that India was no longer to be ruled by kings and queens. अब वो क्वींस और किंग्स के अंदर रूल नहीं करती. Our constitution came into effect on this day.
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च हो गया था इस दिन। एवरी स्कूल इन द कंट्री सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे विद मार्च पास्ट फॉलोड बाय सैल्यूटेशन ऑफ नेशनल फ्लैग। इस दिन हर स्कूल में मार्च पास होती है और क्या होता है, सैल्यूट करते हैं हम अपने नेशनल फ्लैग को। In the national capital New Delhi, a grand parade is held on Republic Day. हमारी न्यू दिल्ली में जो नेशनल की हमारी नेशन की कैपिटल है, वहाँ पे ग्रैंड परेड होती है। Have you seen in your televisions? This parade marches from the राष्ट्रपति भवन to the Red Fort. कहाँ से कहाँ तक जाती है? राष्ट्रपति भवन से रेड फोर्ट तक जाती है। The president takes the salute. Who takes the salute? President takes the salute. He is accompanied by a chief guest who usually is a distinguished leader of a friendly country. किसी फ्रेंडली कंट्री के कोई भी लीडर हो सकते हैं हमारे चीफ गेस्ट। नाउ द आर्म फोर्सेस, पुलिस, जो आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस, फोक डांसर्स एंड स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन द परेड। कौन पार्ट लेता है? स्कूल चिल्ड्रन, फोक डांसर्स, आर्म फोर्सेस। tableau from many states make the parade lively. The tableau shows the स्पेशल एंड यूनिक फीचर्स ऑफ आवर स्टेट। अपने अपने स्टेट के सब स्पेशल फीचर्स दिखाते हैं। ऑन टेलीविजन इट इज व्यूड बाय मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। कितने लोग देखते हैं? पूरे बहुत मिलियंस ऑफ पीपल देखते हैं हमारी परेड को। मेनी पीपल वॉच दिस परेड लाइव एट राजपथ न्यू दिल्ली। कुछ लोग अपने राजपथ पे ही देख लेते हैं न्यू दिल्ली में। ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन टू डिजर्विंग सोल्जर्स एंड ब्रेव चिल्ड्रन। कौन किस किस को अवार्ड्स मिलता है? ब्रेव चिल्ड्रंस को और ब्रेवरी सोल्जर्स को मिलते हैं अवार्ड्स। मेनी गवर्नमेंट्स इन पब्लिक बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड विद लाइट्स इन द इवनिंग। जो हमारी गवर्नमेंट नेशनल बिल्डिंग्स हैं उनको भी डेकोरेट किया जाता है। हमारी पूरी दिल्ली डेकोरेट होती है, हर जगह डेकोरेशन होती है। किस पे? 26 जनवरी में, 15 अगस्त को भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गांधी जयंती। हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती और कब बनाई जाती है? We celebrate महात्मा गांधी's birthday as गांधी जयंती। हम अपने महात्मा गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कैसे? एज अ गांधी जयंती। This falls on 2 अक्टूबर। कब आते हैं ये? 2 अक्टूबर को आती है every year. On this day in 1896, मोहनदास करमचंद गांधी, वो who is he? गांधी जी का फुल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी, who was later known as the father of nation। क्या कहते थे हम इनको? father of nation। was born in पोरबंदर, गुजरात। कहाँ पे बॉर्न हुए थे? पोरबंदर, गुजरात में। he was affectionately called बापू। क्या इनको प्यार से हम क्या बुलाते थे? बापू। the freedom movement led by him helped in India with independence। जो इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट चलाया था उस पर हमें क्या मिली थी? इंडिपेंडेंस मिली थी इन्हीं की वजह से। On Gandhi Jayanti, the government introduces many new schemes for the welfare of the people। गांधी जयंती के दिन गवर्नमेंट ने बहुत सारी न्यू स्कीम्स भी लॉन्च करी हैं। किसके लिए? पीपल्स की वेलफेयर के लिए। The president, the prime minister, several leaders and many people visits समाधि of बापू at राजघाट न्यू दिल्ली to pay homage। जो हमारे बापू जी की समाधि है राजघाट पे, वहाँ पे जाते हैं और उनको मतलब प्रे करते हैं उनके लिए। बहुत सारे several ministers भी जाते हैं। Now let's talk about Teachers Day. First we will talk about the fact bite. It's given over here. What's in this? Jana Gana Mana is the national anthem. What is the national anthem of our country? Jana Gana Mana। It was originally composed in Bengali by Rabindranath Tagore। किसने लिखा था? किसने कंपोज किया था जन गण मन को, हमारे नेशनल सॉन्ग को? Rabindranath Tagore। The song consists of 5 stanzas। कितने stanzas हैं हमारे इसमें नेशनल सॉन्ग में? 5। The playing singing time of the national anthem is approximately 52 seconds। कितने seconds के होता है ये? 52 seconds का होता है। इसमें हमें concentrate करना होता है एकदम। We have to look straight, we have to feel the pride। Now let's talk about Teachers Day। Teachers Day कब celebrate होता है आपके स्कूल में? 5 September, on 5th September। Why we celebrate Teachers Day? We celebrate Dr. S. Radhakrishna's birthday as Teachers Day। किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? Dr. S. Radhakrishna's birthday। It is celebrated on 5th September। कब सेलिब्रेट होता है? 5th September को।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कौन सा सेकेंड प्रेसिडेंट हमारे इंडिया का? डॉक्टर राधाकृष्णन. ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर, टीचर एंड अ फिलोसफर. कौन थे वो? ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर. वो बहुत ज्यादा ग्रेट स्कॉलर थे, टीचर थे बहुत अच्छे, और फिलोसफर थे. वी सेलिब्रेट दिस डे टू ऑनर आवर टीचर्स. हम अपने टीचर्स को ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं इस डे को. Our teachers make sincere efforts to teach, train and groom us. हमारे टीचर्स बहुत सारे एफर्ट्स मारते हैं हमारे को अच्छे से. Your teachers teaches you how to respect others. Your teachers helps you in your work, in your problems. So they deserve some respect also. They also help us to become better human beings and responsible citizens of the country. आपको better human being और responsible citizen बनाने में हेल्प करते हैं country के teachers. On this day, students do stage program for teachers. Students क्या करते हैं? आप क्या करते हो? अपने teachers के stage programs करते हो. They also thank their teachers for teaching them. Now let's talk about Children's Day. Children's Day क्यों मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? We celebrate पंडित जवाहरलाल नेहरू's birthday as Children's Day. कब सेलिब्रेट करते हैं? हम अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उसको ऐसे चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14th नवंबर. हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 14th नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं हम चिल्ड्रंस डे. यू ऑलरेडी नो द पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के. He was very fond of children. उनको क्या पसंद थे? Children बहुत ज्यादा पसंद थे. Lovingly the children used to call him चाचा नेहरू. Children उनको क्या बुलाते थे? चाचा नेहरू. He stressed on the fact that children are the future of a country. उन्होंने बोला कि children ही तो future है हमारी country का. In schools, various activities and competitions are held on this day. Schools में बहुत सारे competitions होते हैं. Children's got gifts also. They go to do parties and many festivals are many activities are done on this day. So let's talk about international days. कौन से होते हैं? International days are those days that are celebrated in whole world, like Earth's Day, World Environment Day. First of all let's talk about World Environment Day. क्या होता है ये? क्यों सेलिब्रेट होता है? World Environment Day is celebrated every year on 5th June. हम 5th June को World Environment Day celebrate करते हैं हर साल. It was declared by the United Nations General Assembly in 1972. Every year the day celebration are hosted by a different country with a different environment related theme. In 1972 जो ये है United Nations General Assembly, उन्होंने डिक्लेयर करा था कि हर 5th जून को नेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट होगा अलग अलग थीम में और अलग अलग कंट्रीज में. द मेन एम इज ऑफ दिस डे इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल डेंजर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, पॉल्यूशन एंड सो ऑन. जो हमारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक पॉल्यूशन, किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, किलिंग, डिफॉरेस्टेशन, जो प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको अवेयर करने के लिए, पीपल को अवेयर करने के लिए ये सेलिब्रेट होता है. ऑन दिस डे schools organize essay and poster making competitions related to the environment. Schools में क्या होता है? essay और poster making competitions होता है इस दिन. Students involve themselves in various other activities like clean up campaigns and tree planting programs. Students क्या करते हैं? वेरियस एक्टिविटीज करते हैं, ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम करते हैं इस दिन, जो हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकती है, जो भी एक्टिविटीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ल्ड हेल्थ डे. क्यों सेलिब्रेट करते हैं और कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7th अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं अपना वर्ल्ड हेल्थ डे. It is celebrated by the members countries of World Health Organization WHO. Have you heard about WHO? That is World Health Organization. वो क्यों सेलिब्रेट करता है? इट इज सेलिब्रेटेड बाय द, कौन सेलिब्रेट करता है? उसके मेंबर्स सेलिब्रेट करते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ. किस लिए सेलिब्रेट होता है? पीपल्स को गुड हेल्थ के बारे में बताने के लिए. ऑन दिस डे मेनी हेल्थ कैंप्स आर ऑर्गेनाइज्ड. बहुत सारे हेल्थ कैंप्स होते हैं. डॉक्टर्स कंडक्ट फ्री मेडिकल चेकअप्स. दे आल्सो गिव
हेल्थ टिप्स ऑन टॉपिक्स सच एज बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, हेल्थ एंड हाइजीन एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजों के बारे में डॉक्टर्स आपको इन्फॉर्म करते हैं, लाइक हाइजीन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डाइट, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए आपको, जिससे आपकी हेल्थ फिट रहे एकदम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अर्थ डे। अर्थ डे कब होता है? 2 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर, हर साल सेलिब्रेट करता है। इट वाज स्टार्टेड इन 1970 बाय गेलॉर्ड नेल्सन। किसने स्टार्ट करा था? गेलॉर्ड नेल्सन। ही वाज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन अर्थ। वो चाहते थे हम जो हमारी अर्थ की रिसोर्सेज हम उसको बिल्कुल कंजर्व कर ले। In 1970, on this day, the thousands of colleges and universities organized protest against environmental degradation in USA। जो हमारे thousands of यूनिवर्सिटीज है 1970 में क्या करा था उन्होंने? एक कैंपेन ऑर्गेनाइज करा था, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा था। किसके लिए? डिग्रेडेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा था यूएसए में। As a result, the US government made laws for protection of the environment। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया किसके लिए? एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। Since then, this day is celebrated to be promote a healthy environment। तो ये डे सेलिब्रेट होता है किस लिए? हेल्दी एनवायरमेंट को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रेट होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल लिटरेसी डे। कब सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे? 8 September every year। The International Literacy Day is celebrated every year on 8 September। It was declared by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। किसने डिक्लेयर करा था? 8 सितंबर को सेलिब्रेट होगा यूनेस्को ने। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू प्रमोट लिटरेसी अराउंड द वर्ल्ड। जो हमारे पूरे वर्ल्ड में लिटरेसी स्प्रेड हो जाए, अच्छे से सब लोग पढ़ें, आप भी पढ़ो, सब पढ़े। Many literacy programs are organized by governments all over the world। इस दिन क्या होता है? ऑर्गेनाइज होते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स, लिटरेसी प्रोग्राम की सबको पढ़ना चाहिए। Night schools for adult education, distinct education and primary education encourage education among people। जो ये नाइट स्कूल्स होते हैं, जो दिन में जॉब करते हैं, रात में पढ़ते हैं, एंड क्या और डिस्टेंट एजुकेशन जो होते हैं वो किस में एनकरेज करते हैं? प्राइमरी एजुकेशन, जो बच्चों में एजुकेशन बनी रहे, लोगों में भी एजुकेशन बनी रहे। इन इंडिया मैनी पीपल आर इलिटरेट। इंडिया में बहुत पीपल इलिटरेट है। ईच वन टीच वन इज अ कैंपेन लॉन्च बाय नेशनल लिटरेसी मिशन। किसने लॉन्च किया था? नेशनल लिटरेसी मिशन ने लॉन्च किया था। ईच वन टीच वन। इन दिस प्रोग्राम द स्कूल चिल्ड्रन हेल्प इन स्प्रेडिंग लिटरेसी। आप जो स्कूल के चिल्ड्रन हो किसमें हेल्प करते हो? लिटरेसी स्प्रेड करने में, लाइक सबको पढ़ाने में, एजुकेट करने में सबको। Now fact by the decade from 2003 to 2012 has been declared as a literacy decade by UNESCO। इस decade में इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन हुई थी। 2003 से 2012 तक लोग एजुकेट होना स्टार्ट कर दिए, इस टाइम ज़्यादा ध्यान दिया गया था। So that's all for this lesson। I hope you all like the explanation of this lesson। Thank you and have a nice day।